मोटिवेशन है, क्योंकि लाइक आई सेड कि बैलेंस इन इटसेल्फ हैज टू पार्ट्स, स्टैटिक एंड डायनामिक, एंड दोनों काफी ब्रॉड टर्म्स हैं, एंड एट द सेम टाइम काफी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि बैलेंस ट्रेनिंग इज वेरी important for the I would say the elderly to continue their regular routine without any obstacles. एंड सिर्फ एल्डरलीज के लिए ही नहीं, इवन जनरली भी, इन रिगार्डलेस ऑफ एनी एज ग्रुप, देर आर सर्टन मूवमेंट्स, देर आर सर्टन एक्टिविटीज जो कि प्रॉपर बैलेंस के बिना नहीं हो सकती, एंड आई वुड से लाइक अब क्वाइट बिट ऑफ देम, काफी सारी ऐसी चीजें हैं जो कि बैलेंस के बिना पॉसिबल नहीं हो पाती हैं। एल्डरली में हल्का सा बस एक एम्फेसिस और उस पर देना पड़ता है व्हेन वी टॉक अबाउट डायनामिक बैलेंस, क्योंकि if someone has low bone density, if someone has low, I would say, जैसे कि बल्क, मसल बल्क अगर कम है, या फिर एज के साथ अगर आपके टेंडन्स और लिगामेंट्स थोड़े से लैक्स हो गए हैं टाइम के साथ, इन दैट केस इवन मतलब एक छोटा सा फॉल भी, जो कि शायद बहुत ज्यादा हाई इम्पैक्ट ना लगे हमारे जैसे किसी इंसान को, but for that person who may have a, low bone density or may have a, very lax kind of ligaments and all, उनके लिए वो छोटा सा फॉल भी काफी डेंजरस हो सकता है, एंड डेंजरस इन द सेंस कि कोई लिगामेंट टीयर हो, कोई मसल टीयर हो, या फिर इवन फ्रैक्चर्स तक हो सकते हैं उस केस में। सो उससे अपने आप को बचा के रखने के लिए, सेफ रखने के लिए, डायनामिक बैलेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड उसके लिए अभी अब मैं माइक हैंड ओवर करूंगा डॉक्टर मेघा को। सो आगे फर्दर वो आपको एक्सप्लेन करेंगी, आपको एक्सरसाइज बताएं। आशा करूंगी कि balance is when the body weight is equally divided and we are in a position where it is the body is in equilibrium, it is completely balanced. मेरे दोनों legs पर बराबर weight आ रहा है, ऐसा नहीं कि right पर ज्यादा है, left पर कम है। shoulders मेरे properly aligned है, ऐसा नहीं कि एक तरफ नीचे है, ऊपर है। These all things, when that is not there, then we call the body is complete in a balanced state. दो और चीजें जो हमने last time भी, repeat those ones. First was base of support. Base of support was जो हमारा बॉडी है, जैसे हम खड़े हैं, दोनों पैरों के जो बीच का static balance, we were basically working with the base of support. हम जैसे जैसे base of support कम करते जा रहे थे, we were challenging our balance, right? Last session में it was center of gravity. Center of gravity मैंने क्यों introduce किया था, क्यों बताया था? क्योंकि when we work on dynamic balance, we play with the center of gravity. Center of gravity is the average, is the area where the average body weights come. एक छोटा एग्जाम्पल मैंने दिया था कि सीसॉ है, it always go up and down, up and down. But then there a stage come जब दोनों लोग बैलेंस कर पाते हैं, दोनों both are in air, but the seesaw is also completely balanced. ना नीचे जाता है ना ऊपर जाता है, completely in this position. So जो center का point है that seesaw का, that is the center of gravity. Body में भी we have center of gravity. When this center of gravity shifts either up or down, हमारा balance challenge होता है, and our balance receptors or the muscles that those maintain the balance, they come into the picture.
Dynamic balance में we basically work on this, and static balance में we basically focus on the base of support, right? जो हमने last time exercises की थी, एक बार I just wanted to know क्या किसी ने repeat किया था, किया तो कैसा था, comfortable था, या कोई चीज कोई बताना चाहते हैं कि ये किया था, ये प्रॉब्लम लगा, ये इशू लगा? एनीबॉडी वांट टू, या ठीक था, एनीथिंग? Perfect, no problem. No, there was no problem. Right. Absolutely, we were able to do it. Yes. Okay, very nice, very nice. So we'll not take much of the time, and I want कि एक बार we will start with the breathing exercise, then we will come on the balance training, and I want everybody कि अगर footwear या slippers पहना है या socks पहना है, if it is okay to please remove them, because the more we work with barefoot for the balance training, that gives a more good response. So slippers है या socks है और अगर comfortable है तो उसको remove कर दीजिए. Once it is done, we'll start with the breathing exercise and then our exercises for the balance. Okay, so we'll start with breathing exercises. Everybody just close your eyes. Take a deep breath inside from your nose. Focus on your chest expansion and out from your mouth. 1. Again, deep in, out. 2. Again, in, out. 3. Deep in, out. 4. One more. Out. 5. Relax. When we were exercising for the static balance, तो हमने उसमें 5-6 sort of exercises किया था. We will be doing the same, but now working in a dynamic way. उसमें body was static, इसमें the body will be in motion. So I want everybody to stand up and keep a chair or anything by your side to take support if required. Please get up. Okay, so first exercise when we were doing the static balance was putting the entire weight on the toes and coming up. Okay, and then down. This was static balance. Now what we will do in case of dynamic balance, keep a chair for support. Now there will be a weight transfer. First I will do, just see if in case there are any doubts, ask and then perform, right? So there will be movement shifting between toes, heel, toes, heels. कुछ पकड़ के रखना है. Rapid shifting होगी of the weight between your toes and coming on the heels. Toes and heels. So body is in movement and you're shifting your weight from your toes up, then heel up. Toes up, heels up. Right? Now I want everybody to repeat 10 repetitions and we'll start by this count. Start. 1, 2, up, change. 3, up, change. 4, up,
change 5 up, change 6, change 7 on your heels, 8 back to heels, 9 and 10. Relax. Comfortable? Good. Okay. Now, second is we did lifting one leg up and keeping all the weight on the other leg. So how we will be doing this exercise for dynamic balances? Suppose there is an imaginary line and you have to walk through that line. एक imaginary line के ऊपर ही हमें walk करना है and make sure कि हमारा जो foot है हमें वो उस line के ऊपर ही रखना है, ना उस line से left जाएगा ना उस line से right जाएगा. So you have to basically walk. Suppose an imaginary line is there and पैर के आगे पैर रख के. We call this as tandem walk also, जहां पर एक पैर के एकदम आगे हम दूसरा पैर रखते हैं. वो आपने देखा होगा, वो मेलों में भी लगता है, वो एक रोप के ऊपर चल रहे होते हैं. So एक बहुत ही फाइन कंस्ट्रेंट एरिया के ऊपर ही हम चल रहे हैं. So we are balancing. We are actually working on our balance. So everybody will take a turn either side and suppose an imaginary line and walk, or you can walk in front also. एक पैर के सामने दूसरा पैर रहेगा. Walk forward, going back, back up, turn लेके आराम से जाएंगे. Again forward, forward walk, 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 walk. Very nice, very nice. Okay, now turn back. पूरी आप कर रहे हैं या आपको अभी शायद समझ नहीं आया? शायद थोड़ा डूइंग इट. थोड़ा सा आई जस्ट वांटेड नो इट कि जब पाँव आगे करना है उसके बाद क्या करना है. आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड दैट. ओके ओके, या सी बेसिकली आई वांट यू टू वॉक. एक पैर रखा, उसके आगे दूसरा पैर रखना है. जैसे कि हम अभी चलते हैं तो हम थोड़ा डिस्टेंस बना के चलते हैं दोनों पैरों में, एकदम एक के आगे दूसरा सटा के नहीं चलते. बट अभी आपको एक और दूसरा उसके आगे रख के चलना है. हील जो एक पैर का है वो दूसरे टो के एकदम एग्जैक्ट आगे रखना है आपको. वेरी नाइस. Like Mr. Ved is doing it very correctly. You can just see his video also. Basically, एक पैर, उसके आगे एकदम दूसरा पैर, फिर उसके आगे एकदम दूसरा पैर. जैसे आप एक रस्सी पर चल रहे हैं और उतना ही एरिया है आपके पास चलने के लिए. Do it. Yeah, Mr. Puri, you have to walk. Walk, yeah. Walk, walk, come in front. थोड़ा और आगे आइए. Walk. Walk. अच्छा, okay. ठीक है. Mr. Ved, you can stop. And you have done it very nicely, properly, both of you. Very nice. Mr. Puri, शायद आपको भी शायद समझ नहीं आया. Or you are able to do it. नहीं, अनेबल तो डू तो नहीं है. थोड़ा स्पेस देख रहा हूँ. आई एम ट्राइंग टू फाइंड अ स्पेस. आगे मेरी कुर्सी पड़ी, इधर पड़ा हुआ तो कोई नहीं. आप साइड, हाँ, वॉक दिस वे, नो वरीज. वॉक दिस वे, साइडवेज, या वॉक. एक कदम आगे जाना है, दूसरा आगे बढ़ाना है, उसके बाद आपको चलना है. जैसे आप खड़े हैं, आपको आगे की तरफ चलना है. बस एक पाँव के आगे दूसरा पाँव रखना है. दैट इज इट.
नहीं पीछे आना है कि नहीं आना है? पीछे घूम कर आना है, ऐसा रिवर्स वॉक नहीं, घूम कर आना है वापस. I can do reverse walk also, Dr. Megha. Very nice. वो आपने rope walking जो बताया बहुत अच्छा है. To keep one foot right in front of your toe and then walk. Good. Yeah. Reverse we will do separately. Actually, we'll not combine both the exercises. Reverse we do separately. So that I will make you do, but separately. Okay. Very nice. Like I want everybody, अगर Mr. and Mrs. Ved को भी देखें, so they are actually doing it correctly, perfectly, and imagining, yes, they are walking on a rope only, maintaining the balance, spreading the arms out to maintain the balance. So nice. Okay, relax. Everybody please sit. Have rest for a minute. Please have a seat. Thank you. Yeah. जब हम normally चलते हैं, we always keep some gap between both the foot. एक जोड़ के नहीं चलते हैं. लेकिन जैसे मैंने एग्जाम्पल कोट किया था कि जब आप मेले में देखते हैं वो रस्सी के ऊपर चल रहे होते हैं, how they have to maintain the balance. So same thing we were doing, imagining कि हाँ, we are also walking on a straight line or on a rope where we have a very restricted area. तो एक पैर के एकदम आगे दूसरा पैर रखना है, फिर उसके आगे नेक्स्ट हमें स्टेप बढ़ाना है, and this way we will be maintaining our balance. Otherwise casual walk करना है तो we know बहुत स्पेस है, आराम से पैर रख के चल सकते हैं. लेकिन जब हम स्पेस कम कर देते हैं तो हम अपने बैलेंस को चैलेंज करते हैं. तो उसमें हमें लगता है कि जब एकदम पाँव के आगे दूसरा पाँव रख के चलना है, तो हमें ज्यादा मेहनत लग रही है बैलेंस मेंटेन करने में. लेट इट बी सेम सरफेस पे, सेम हम फ्लोर पर ही चल रहे हैं, जस्ट हमने इमेजिन किया है कि हम एक स्मॉल एरिया पे चल रहे हैं, तो वी आर एक्चुअली चैलेंजिंग आवर बैलेंस. Everybody is comfortable? We can spread our arms. Yeah, you can. Yeah, you can. If you want to maintain your balance also, you can. So there is no problem in that. Arm spread करने में थोड़ा assistance मिल जाता है, because shoulders, upper body, कुछ सोच के ये body complex बनाया गया है. क्यों symmetry है? Both the sides shoulder क्यों है? Both the sides elbow क्यों है? क्योंकि बॉडी को ऑलरेडी भगवान ने भी बैलेंस करके भेजा है, तो इसीलिए स्प्रेड करने से हम उस चीज का एडवांटेज ले रहे हैं. तो यस, यू कैन डू, देयर इज नो harm in doing that, and you can add this component also. Okay, so next में first I will show, then मैं चाहूंगी कि आप लोग रिपीट करें. अभी हमने स्ट्रेट चला था, हमने नेक्स्ट एक्सरसाइज किया था जब हम स्टैटिक बैलेंस कर रहे थे, साइड अप, कीपिंग ऑल द वेट ऑन वन लेग एंड लिफ्टिंग वन साइड अप. सो नाउ आई वांट एवरीबॉडी टू डू साइड वॉक. साइड वॉक्स बोथ द साइड्स. एक थोड़ा डिस्टेंस देख लीजिए कितना आप कवर कर सकते हैं, वहां तक जाना है एंड वहां से फिर वापस आना है. सो वॉकिंग साइडवेज लाइक दिस एंड देन कमिंग बैक. वी ऑल विल स्टार्ट टुगेदर एंड आई वांट टू all of you to complete 10 repetitions. If anybody feels tired in between, please sit, because सबके लिए 10 repetitions से शुरू करना हो सकता है ना भी आसान हो. तो जहां लगे कि थकावट है या नहीं कर पा रहे हैं या आप थक गए हैं, तो प्लीज sit down, right? So अभी we start sideways walk, start towards one side. Yeah, please start walking.
वेरी नाइस, वेरी नाइस। एक डिस्टेंस कवर करके वापस अपने स्टार्टिंग पॉइंट पर भी आना है सबने, एंड देन वी विल टेक दिस राउंड एज 1। One. Yeah. Again, sideways walk. Very nice, very nice. Two. Again. Three. Four. Five. Everybody is okay doing 5 more? Yes. Yeah, please continue. Very nice, very nice. Six. Seven. Eight. Nine. डॉक्टर मेघा, Yes, sir. अगर हम पंजों पे चलते हैं तो कैसा है? That is an advancement. हम पंजों पर भी स्टार्ट कराते हैं, बट लेटर। पहले वी वांट कि बॉडी थोड़ा इससे यूज टू हो जाए टू वॉक इन ऑल डिफरेंट डायरेक्शंस, एंड देन अगेन दैट इज बेस ऑफ सपोर्ट. Again we'll bring base of support into the picture and using the point of contact. So you're thinking in the correct direction. Yeah, we can do that, but yeah, later. First we'll repeat this, maybe a week do this, and then later you can add this thing to reducing the base of support also. इसमें थोड़ा बैलेंस, Relax, relax. बैलेंस अच्छा है वैसे, पूरे हाँ पाँव जी, में बैलेंस अच्छा है। जब good. पूरा पाँव जमीन पे रखते हैं तो बैलेंस इज वेल मेंटेन्ड। Yeah, but usually see, हम रूटीन में कितना साइड में वॉक करते हैं. This is exclusive. We are working on a particular muscle and in one direction. So पहले इसको use to करा के, then definitely toe walking we can add to it. We do add to it. That is an advancement.
So we can do that also. But I prefer to practice this for 2-3 days or a bit more than that, and then you can add this thing to reducing the base of support also, right? Right. So yeah, so we are done with 10 repetitions. Everybody is comfortable? डॉक्टर साहब If you want to fit, मैं 45 मिनट्स एक्सरसाइज करके आ रहा हूँ आपके पास, मतलब अच्छा जी। 4:30 मिस्टर सहाय, अविनाश। सहाय सर, आपकी वीडियो नहीं दिख रही मुझे। Yeah, you can see me, I think. साक्षात्कार नहीं हुआ अभी तक से, आपका दर्शन नहीं हुए। नहीं, मैं तो आपके दर्शन कर रहा हूँ, फीलिंग वेरी थ्रिल्ड। हमें आपके दर्शन नहीं हो रहे लेकिन and I can see lot of videos जो पॉज है, तो कोई बात नहीं, एक्सरसाइज नहीं भी करनी, शक्ल को देख। हेलो गुड मॉर्निंग सर। I forgot to switch off, but very good. So इस बारे I've already completed a lot of strenuous exercise of yoga and all that, climbing staircase of 100 staircase. Okay, good. Feeling very good way. Good. So no worries, you can just see and later you can do the exercises. That's not an issue. You need to give rest to the body also, right? Thank you. Okay. So अभी हमने ये किया, अब next is everybody, I want to walk backwards. फ्रंट फेस करना है लेकिन हमें चलना उल्टा है, तो प्लीज मेक श्योर जहां आप वॉक करें पीछे आपका स्पेस क्लियर हो, ग्राउंड पे कुछ ना हो, आप किसी चीज से टकरा ना जाए, बिकॉज वी विल बी वॉकिंग बैकवर्ड्स एंड देन कमिंग टू द स्टार्टिंग पोजिशन एंड देन वॉकिंग बैकवर्ड्स। हियर ऑल्सो सी हमारा विजन ऑल्सो प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। हम देख के अपना जज कर लेते हैं, पैर कितना ऊपर रखना है, स्पेस कैसा है, टेरेन कैसा है, मुझे कैसे पैर रखना है, स्पेस कम है तो मैं उसी के हिसाब से ब्रेन सिग्नल देता है एंड वी वॉक। लेकिन जब मैं उस चीज को भी हटा दूं, अगर हम देखें ही नहीं हम कहाँ चल रहे हैं, तो अगेन वी आर चैलेंजिंग आवर बैलेंस। सो दिस इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ बैलेंस ट्रेनिंग, wherein we ask our participants to either close their eyes and do the exercises or else do a backward walk where you cannot see कि पीछे क्या है। आपको अपने घर का पता भी होगा ना कि क्या रखा है क्या नहीं रखा है, लेकिन अगर आप आईज क्लोज करके चलेंगे यू विल फील कि थोड़ा और कॉन्शियस होके चल रहे हैं और बॉडी को थोड़ा ज्यादा काम करना पड़ रहा है टू मेंटेन दी बैलेंस। सो एक बार पीछे प्लीज देख लीजिए, सब क्लियर है? मिस्टर पुरी आप पार्क में हैं, एक बार देख लीजिए पीछे एंड देन वी ऑल विल स्टार्ट टुगेदर। यस सर, मिस्टर वेद, या you need to unmute your mic sir. Sir, your mic is, you need to unmute your mic. Mr. Ved, you need to unmute your mic. Mic को unmute कर लीजिए। Okay, done. Yeah sir, बोलिए। So is it a normal backward walk? Yeah, normal backward walk, बहुत लंबे स्टेप नहीं लेने, शॉर्ट स्टेप्स एंड पीछे देखना कुछ नहीं है, Right. hands will be on the way and normal backward walk, taking short steps. Yeah. और जब आगे आना है तो क्या कर रहे हैं? आगे is your normal. You're coming to your starting position. That is normal. अच्छा, नॉर्मल आना, ये तो नहीं तब भी बैक करके अपना आना है? नहीं, बैक करके नहीं, आप आगे आएंगे, आपने वो ब्रेक दिया, रेस्ट किया, फिर अगेन यू विल गो बैक। 1 या मिस्टर पुरी स्टार्ट। यस, गो बैक और वापस नॉर्मली आना है। आउट ऑफ साइट। वेरी गुड। आज ऐसा लग रहा है जैसे बच्चों को खिला रहा हूँ मैं। ऐसा लग रहा है डॉक्टर मेगा पीछे खड़ी हैं, आप गिरेंगे नहीं, आइए। हाँ, और मुझे भी लग रहा है मैं भी बच्चों को खिला रही हूँ।
मतलब बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है सबको देखने में। अब फिर से टकराना नहीं आप। हाँ जी। बट दैट वाज आल्सो गुड। डॉक्टर मेघा, अगर मान लो कोई गिर जाता है तो आप तो क्या इमरजेंसी क्या है आपके पास? मुझे इतना भरोसा है कि कोई नहीं गिरने वाला। मुझे यहाँ अच्छा। बैठ के उतना भरोसा है कि कोई नहीं गिरेगा। नहीं, मान लो अगर मैं थोड़ा सा ऐसे ही गिर जाऊं तो आप क्या करोगे इमीडिएटली? वहीं से आपको खींच लेंगे वो। डॉक्टर साहब, अमीरा She'll pull you out. Don't bother. Just think she's standing behind. Don't think your wife is standing. तो आप गिर जाएंगे। 5 मिनट के लिए लोहा है। अविनाश जी आप कैसे करोगे? मैं तो सोचता हूँ मेघा जी खड़ी है, मैं बिल्कुल सही सेफ हूँ। भाई अभी तो सारा कुछ एवरीथिंग इज गोइंग ऑनलाइन. We do not know how the things are going to develop. They'll develop. It is just in humor only. Yeah. We will not fall. Yeah, nobody will fall. Yeah. ऐसा बिल्कुल। डॉक्टर मेघा की हंसी से तबीयत खुश हो जाती है। वेरी नाइस। नहीं, अगर वो मेडिकल वाले फर्स्ट एड वाले पीछे तो जानबूझ के हम गिर भी जाते हैं, देखते हैं उनकी ट्रेनिंग कैसी है। अगर गिर भी गए तो you will fall in good company. गिरे भी तो you will fall in good company. देखिए स्वर्णा जी हंस रही है। हाँ, ये पता नहीं ना कि कंपनी कौन सी होगी, अच्छी होगी कैसी होगी। डॉक्टर मेघा है वहाँ पे, आप क्यों सोच रहे हैं? Because I can't pick up a partner for me. ये तो इमोहा वाला पता नहीं किसको दे देता है। अरे सुरेश भाई, you are doing extremely well. Please go ahead. चलो, okay, wonderful. Am I doing all right? Yeah, you are doing all right. और मैं अभी थोड़ा लास्ट में आपसे बात भी करूंगी क्योंकि आपका लास्ट टाइम बैलेंस का भी था तो मुझे बात करनी थी। लास्ट के 5-7 मिनट्स हम रखेंगे बात करने के लिए। बट सबसे रिलीजियसली एकदम अनडिस्ट्रैक्टेड मिस्टर एंड मिसेस वेदा डूइंग दी एक्सरसाइजेस। नॉट बॉदर क्या बात चल रही है क्या नहीं चल रही है। सर और मैम दोनों ने अपने अच्छे राउंड्स कंप्लीट किए हैं, तो बाकी सब फटाफट से फिनिश करेंगे। 5 हुए हैं, 5 मोर। वेरी नाइस, वेरी नाइस। These are very simple exercises, but yes, they actually impact a lot on your balance and your walking and even to understand the body also. कितना weight जा रहा है, कितना कैसे चल पा रहे हैं, बराबर वजन है दोनों पैरों के बीच में या नहीं, तो ये आपको भी बताता है अपनी बॉडी के बारे में। हम रूटीन में बहुत काम करते हैं, बट वी टेक and okay, relax. Please sit. Everybody, please sit down. हंसते हंसते सफर अच्छा निकल जाता है। राइट, वो बात तो सही है सर। रिलैक्स। Everybody is comfortable? Yes. Yeah. तो आपने Good. मेंटल बैलेंस भी इम्प्रूव करा दिया। सर वो तो आप लोग जो इतनी अच्छी बातें करते हैं उससे हो जाता है। थैंक यू वेरी मच। We all एक्चुअली यही हम लोग चाहते हैं कि हंसते हंसते अपना करते रहो एक्सरसाइज, तो दैट इज बेटर। yes, that is true. अगर थोड़ा सीरियस रहोगे तो फिर थोड़ी और सीरियसनेस आ जाती है। हाँ, फिर वो बोरिंग भी लगेगा। I totally understand and agree with your point. So इसीलिए इन बिटवीन हम भी थोड़ा बहुत कभी कभी हंसी मजाक कर लेते हैं। नहीं, अच्छा, नहीं तो 1 घंटा बिताना बहुत मुश्किल सा हो जाता है। हाँ, एकदम सीरियस रहे तो फिर थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। यस, ओके। सो कॉन्सेप्ट सबको समझ आ रहा है, ये क्यों कराया जा रहा है? कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट? नहीं। राइट, अभी वी आर लेफ्ट विद 2 more एक्सरसाइजेस। ठीक है, पहले मैं एक बार करती हूँ,
देन अभी तब तक आप लोग बैठिए, रेस्ट करिए, एंड देन आप लोग सब खड़े होके करना, ठीक है? क्योंकि इसमें ज्यादातर सारा एक्सरसाइज हमारा खड़े होकर, वॉकिंग और इसी पर है, इसलिए मैं बीच बीच में आपको रेस्ट देके बोल रही हूँ कि बीच में बैठिए, रेस्ट देख लीजिए, नेक्स्ट 2 एक्सरसाइजेस क्या है, और फिर एक बार सब इकट्ठे उठ के करेंगे, राइट? अगर आप में से किसी को पानी पीना है बीच में तो आप पानी पी लीजिए, देन आई कैन स्टार्ट, और शुड आई कंटिन्यू? कंटिन्यू। राइट राइट। जनरली जब हम क्लिनिक में बैलेंस ट्रेनिंग कराते हैं, उसका एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट होता है ऑब्स्टेकल वॉकिंग। ऑब्स्टेकल वॉकिंग में हम क्या करते हैं, हम कुछ डिफरेंट साइज के कोन रख देते हैं, कुछ ऑब्जेक्ट रख देते हैं, एंड देन वी आस्क कि जैसे आप ये सोचेंगे कि आपके आगे कुछ कोन्स रखे हुए हैं, या आप इमेजिन करिए फुटबॉल रखा हुआ है, 2 3 4 फुटबॉल रखा हुआ है, एंड आपको उसको क्रॉस करना है, जैसे हम किसी चीज को टापते हैं, राइट? तो उसको हम कहते हैं ऑब्स्टेकल वॉकिंग। वो हम कराते हैं व्हेन वी एक्चुअली कीप डिफरेंट शेप के ऑब्जेक्ट्स एंड वी आस्क पार्टिसिपेंट्स टू क्रॉस ओवर देम। मेक श्योर वो टच ना करे, मेक श्योर आपका बैलेंस आउट नहीं हो रहे और आप उसको क्रॉस करें। अभी हम सब इमेजिन करेंगे कि देयर आर, इमेजिन एनीथिंग, फुटबॉल लवर्स कैन से कि फुटबॉल रखा हुआ है, बस उसको किक ना मारे, कोन रखा हुआ है, जैसे कि इमेजिन वाटर बॉटल्स रखी हुई है 5-6 सीधी खड़ी हुई हमारी बॉटल्स हैं, नॉर्मल कोई बॉल रखी हुई है, एनीथिंग, एंड देन हम उसको क्रॉस कर रहे हैं, टाप रहे हैं, 1 2 3। ये करने के बाद सेम वे पीछे भी जा रहे हैं, ओके? इमेजिन यही करके रखना है कि कुछ रखा हुआ है एंड मैं उस चीज को क्रॉस कर रहा हूँ, मैं उस चीज को क्रॉस करके जा रही हूँ और मुझे टच नहीं होने देना। या सोच लीजिए कि आगे क्या है, कुछ गैप में हमने गड्ढे बना रखे हैं, अगर उस गड्ढे में पैर जाएगा तो हम गिर जाएंगे, तो इसलिए हमें ध्यान से उसको टापना है, 1 2 3। ये करने के बाद पीछे भी आना है, यही इमेजिन करना है कि यस, मुझे ना ही उसके ऊपर स्टेप करना है, कुछ इमेजिन किया है, कुछ रखा हुआ है तो मुझे उसको टच नहीं करना है। दिस इज फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड ऑब्स्टेकल वॉकिंग। सो एनीथिंग यू कैन इमेजिन, आई वांट कि एटलीस्ट 5 to 6 steps, even more than that if you all are comfortable, forward and then back, इतना डिस्टेंस तो चलना भी है। ध्यान क्या रखना है, हिप अच्छे से बेंड हो, नी अच्छे से बेंड हो और आप उसको क्रॉस कर पाए। यस सर। बैकवर्ड का थोड़ा एडवांटेज बता दीजिए कि जब बैकवर्ड जाना है तो यू आर नॉट वाचिंग द ऑब्स्टेकल बिहाइंड यू, और वैसे चलते हो विदाउट सीइंग एनीथिंग वी आर गेटिंग बैक। उसका कोई बेनिफिट क्या नजर आता है आपको, स्पेशली जब हमें पता है कि हमारे पीछे ऑब्स्टेकल्स हैं? तो उसका बेनिफिट क्या नजर आ रहा है आपको? पहला चीज जैसे मैंने पहले बताया कि जब हम अपना आईज क्लोज करते हैं या जब हमें कुछ नहीं दिख रहा होता, जब हमारा विजन में चीज नहीं होती है, तो हमारा बॉडी, आईज प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन मेंटेनिंग आवर बैलेंस। अगर आईज क्लोज होती हैं तो बॉडी में ऑटोमेटिक सिग्नल जाता है कि थोड़ा सा और ध्यान रखना है, कहीं हम फॉल ना कर जाएं। आप अपने घर में जिसमें आपको सब पता है सोफा कहाँ रखा है, चेयर कहाँ है, कुर्सी कहाँ है, आप नॉर्मल चलेंगे कुछ नहीं होगा, लेकिन वहीं पर अगर आप अपनी आईज क्लोज करके चलते हैं तो वो आपको थोड़ा सा और चैलेंजिंग लगता है, फर्स्ट थिंग। तो जब हम उल्टा चला रहे हैं तो आपको पीछे दिख नहीं रहा कि क्या है, सो ब्रेन भी ज्यादा काम करेगा, मसल भी ज्यादा काम करेगी कि कहीं गिर ना जाए, क्योंकि सीधा चलने में उल्टा चलने की हमें इतनी प्रैक्टिस भी नहीं होती। जनरली वी डोंट वॉक बैकवर्ड्स, राइट? सो दैट इज वी आर ट्रेनिंग फॉर दिस पर्पस ऑल्सो। आईज हमने एक अपना आइसोलेट किया जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, वो बंद करेंगे तो हमें ज्यादा काम करना पड़ेगा। सेकेंड, जैसे मैंने आपको बोला कि हम यूजुअली इतना बैकवर्ड वॉक नहीं करते हैं, सो वी आर एक्चुअली
stimulating, we are actually activating all our back muscles, glute muscles. See, मैं नॉर्मली चलती हूँ या हम लोग नॉर्मली चलते हैं तो जो हिप हमारा पीछे जाता है उसके ज्यादा रेंज नहीं है, राइट? क्योंकि थोड़ी सी रेंज में हमारा फंक्शनल काम हो जाता है. सो एंड हिप बटक मसल्स जो है हमारी, जो ग्लूट्स की सारा मसल्स है, दे आर अ वेरी लार्ज ग्रुप, हेवी ग्रुप, लार्ज ग्रुप एंड लार्ज मसल्स. तो इनको, इनकी प्रॉपर फायरिंग, कि सारे फाइबर्स अच्छे से काम करें, हमें इनको कुछ एक्स्ट्रा काम करवाना होता है. तो वो एक्स्ट्रा काम हम कैसे करवाएंगे? हम ज्यादा एक्सटेंड करेंगे, ज्यादा पीछे लेकर जाएंगे. So all the fibers are being activated and muscles are working more than जो usually काम करने के लिए muscles हमारा activate होता है. So activation of the muscles, one thing, and second, yeah, again working on the balance where you are not aware कि पीछे मैं चल रहा हूँ, चलने पर भी मुझे पता है कुछ भी नहीं है, but then brain, muscles, receptors will work more कि body एक अच्छे form में चले. Am I clear? Yes. Right, sir? Right. Yeah. Anything else anybody wants to ask? नहीं, बस हमें तो वही थोड़ा डर है, घर के अंदर क्रिस्टल्स पड़े हुए हैं, क्रिस्टल पे पैर पड़ गया तो शुरू ना हो जाए महाभारत घर में ही. नहीं, फिर सर आप पार्क में ही करके चले जाइए, घर पे मत करिएगा. क्रिस्टल हटा दीजिए, क्योंकि वहाँ तो कोई फर्स्ट एड कुछ काम नहीं आएगा, तो आप बाहर पार्क में करके ही चले जाइए. वहाँ तो आराम. Megha, there's another difference between your eyesight and vision. Yeah. Yes, sir. Please, please. जो आप देख रहे हैं, तो if you have the vision, you can walk back without it. Thank you. Yeah. Yes. So, should we start? Yes. Okay. Yeah. Please. Yeah, see you. सब इमेजिन करेंगे कि कुछ आगे रखा हुआ है. मिस्टर पुरी, आप क्रिस्टल से इमेजिन कर लीजिए ताकि आप उस पर पैर ना ही रखें तो अच्छा है. एनीथिंग दैट इज, जिसका फियर है कि नहीं इसको तो पैर नहीं लगना चाहिए, ये तो टूटना नहीं चाहिए, इमेजिन दैट थिंग. अभी तो साइट इज एक्चुअली वेरी क्लियर. या सो स्टेप अच्छे से अप करना है, जैसे कि हम किसी चीज को क्रॉस कर रहे हैं. 5 to 6 steps forward, everybody I want to do. And Mrs. भट्टाचार्य, आप जितना अच्छे से पैर उठाएंगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा. तो जस्ट फोकस की अच्छे से ग्राउंड क्लियरेंस रहे. जैसे आर्मी मैन वॉक करते हैं ना, अच्छे से उठा के करना है पैर, ठीक है? And then yes, back. How many steps will go forward? I want everybody at least 6 steps to forward lane. 6 is I want कि सब करें. 1, 2, 3, 4, 5, 6, and then 6 back. Very nice. It's 9 o'clock. Yes. 2. Forward. Yes. Back. मिसेस भट्टाचार्य, हाथ कमर के ऊपर रखिए ऐसे. हाँ, अब करिए. Three. डॉक्टर मेघा, एक म्यूजिक ऑन कर दिया करो. म्यूजिक? अच्छा सर, मैं डॉक्टर अनुराग को बोलती हूँ, मतलब डॉक्टर अनुराग इस चीज में हेल्प कर सकते हैं मुझे थोड़ा और. म्यूजिक के साथ ऐसे 5 के कम 10 स्टेप भी ले लेंगे. अच्छा जी, ठीक है सर, पक्का नेक्स्ट टाइम हम इस चीज का ध्यान रखेंगे. पूरी अंकल, ये इनिशिएटिव आप ही लीजिए प्लीज. हाँ जी सर. मैं पूरी अंकल से कह रहा था कि ये इनिशिएटिव म्यूजिक वाला पूरी अंकल को ले लेना चाहिए.
Gaurav, thank you very much that you have come to the. Welcome, sir. Gaurav, थोड़ा सा तू कट्टर आकर यहाँ, you are the one who is controlling the complete IT. Sure, sure, sir. थोड़ा म्यूजिक दे दिया करो, क्योंकि जब एरोबिक एक्सरसाइज होती है तो हम डॉक्टर अनुराग को बोलते हैं कि विदाउट दैट वी विल नॉट डू इट. Okay, okay, sir. We will take care next time. तो नेक्स्ट टाइम आई कैन आल्सो ब्रिंग स्पीकर वगैरह यहाँ लगा के रखता हूँ, but that will be only for me only. 5 more. 5 more. Yes. If you're tired, you can sit, and those who are able to do it, they can complete 5 more. That is it. मिस्टर अविनाश से पूछो, वो 40-45 मिनट पहले अपना वार्म अप करके आए हुए हैं. I'm feeling very good, and that's why I'm sitting. मैं Dr. Megha, I'd like to share with you. आपने Yes, बताया of the back muscles, why you should use them. जैसे आर्मी मैन मार्च करते हैं तो पैर उठाते हैं, हम लोग सब भूल गए. वो this is a beautiful concept. I really love it, and why it is important. And you did explain that. ये जब खत्म हो जाएगा तो मैं आपको एक डिफरेंस बताऊंगा between happiness which you were saying. डॉक्टर एल्बर्ट आइंस्टाइन से पूछा गया, उनकी वाइफ से किसी ने पूछा कि डू यू नो द थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी. बड़ा साइंटिस्ट है. तो शी सेड आई नो वेरी सिंपली, you sit on a hot stove for a second, you feel an hour has passed. If you sit next to Dr. Megha for an hour, you think only a second has passed. The relativity between the two. Thank you so much, sir. Okay, very nice. Please sit. Relax. And Mr. Ved, yeah. They both have very good company. So I think enjoying their session a lot. एक दूसरे के साथ भी और हम लोगों के साथ भी. But I think अपनी कंपनी बहुत अच्छे से दोनों अच्छे से मैनेज करके everything they're doing very nicely. So very nice, very nice. Thank you so much. Thank you very much. She's really enjoying today. Okay, good, very good, very good. Yeah, comfortable? Yes. Yeah. Any issue you faced while doing any of the exercise? No. Very comfortable. Very No comfortable. problem. No issue. Very nice. Mrs. Bhattacharya, you were comfortable? Yes. Good. Yeah. So whenever you have time apart from the morning sessions, if not 10, at least 5 repetitions you can do, जिसमें कि अभी आपको सारा पैर से लेकर हिप से लेकर बैक तक सारा एहसास हो रहा होगा कि हाँ मसल ने काम किया है, मसल वर्क इज बीइंग डन. सो व्हेनेवर इन बिटवीन यू हैव टाइम, जो मैंने पहले 2 सेशंस में भी एक्सरसाइजेस कराई हैं, उन कंपोनेंट्स को भी, ये जो मैंने आज आपको अपना डायनामिक बैलेंस कराया है, इस चीज को भी थोड़ा थोड़ा करके अपनी रूटीन में कुछ समय निकाल के करते रहेंगे. इट विल हेल्प यू अ लॉट. Especially Mrs. Bhattacharya, last time you mentioned you are having some balance issues. So for you, just make a routine. Evening में once, या तो static balance में काम करूंगी, हफ्ते में 3 दिन static वाली एक्सरसाइज करेंगे, हफ्ते में 3 दिन डायनेमिक वाली करूंगी. You will definitely feel the difference in walking. या स्टेप एकदम से चेंज करना पड़ गया, टर्न लेना पड़ गया एकदम से, तो उन सब चीजों में आपको फर्क लगेगा, प्रोवाइडेड एक रूटीन फॉलो करके if you will do these exercises, right? Okay, thank you. Yeah, thank you. So if anybody wants to ask anything, now it's I think your time. मैंने बहुत बोल लिया काफी टाइम से. So any questions, anything, तो please go ahead. डॉक्टर मेघा, एक स्मॉल क्लैरिफिकेशन. जब आपने ब्रीथिंग बताया था, हाँ जी, you take up your breath. If you take it for 3 minutes, you take 6 minutes to take it out, or 6 seconds. मैंने योगा में सीखा है कि you breathe through your nose and breathe out through your nose, not by your mouth. योगा वाले कहते हैं हाँ कि वो आप कोई भी योगा जो एक्सरसाइज है वो नाक से सांस लीजिए, नाक से निकालिए. स्विमिंग में हम जरूर मुंह खोल के सांस लेते हैं. I just thought of sharing that. I feel very comfortable. okay.
breathing exercises, maybe there are a lot of components. Okay. So everybody has their own different component जिसके साथ they do the breathing exercise. हम breathing exercises में we basically focus in from nose and out from mouth. And yoga में they have a concept of जिसको हम प्राणायाम बोलते हैं, जिसमें कि वो nose breathing से ही focus करते हैं. So I think that is why they are more inclined towards that component. And we are basically हम aerobic exercises जब start कर रहे हैं, and otherwise हम पूरा body के लिए थोड़ा सा the exercises जो हम कराते हैं वो थोड़ी सी activity ज्यादा होती है. So that is why we are more inclined towards this component. But otherwise, both the ways it is fine. There is no problem. Right. Thank you. Let it be from nose or mouth. There is no problem. Thank you. Yeah. Anybody else? Anything? We feel very comfortable when we, really sweat. थोड़ी perspiration वगैरह होती है, then we feel very happy. आज आपने dynamic exercise करके थोड़ा सा पसीना मेरे में तो आ ही गया क्योंकि I am slightly outside. पसीना आया. I'm feeling very comfortable and thank you very much for this. Thank you so much, sir. Thank you. Thank you. So I think I'm done with the session. So over to Dr. Anurag now. डॉक्टर मेघा, एक चीज और है. हाँ जी सर. पहले आया था वो योगा में हम लोग को कहते हैं कि आप एक टांग पे खड़े हो जाइए. हाँ जी. और आप सर अभी मत करिए, बैठ जाइए. वो दोनों में कहते हैं कि आप so that is also dynamic balancing what you were trying to teach us now. Correct. Yeah, that is also there. But then you have lot of components. एक पैर ऊपर, ये ऊपर से आपने ऊपर अपर बॉडी की मूवमेंट भी कर ली, राइट सर? सो जो मैं करा रही हूँ, मैं बेसिक से थोड़ा शुरू किया है. बहुत अच्छा आपने किया. रीजन व्हाई वी डू इट. Thank you. Yes, तो प्रैक्टिस द बेसिक वन, ये भी अपने आप हो ही जाएगा. ये थोड़ा एडवांस है, अपर बॉडी भी मूवमेंट साथ में कर दी, ये भी उठा लिया आपने, तो इसलिए ये थोड़ा सा एडवांस हो जाता है. Excellent. That's the only difference. Yeah. Okay, Dr. Anurag. जी. So if there are no further questions then तो आई थिंक ये आज का हमारा सेशन यहीं पे कंक्लूड होता है फिर. एंड आई होप कि आज का सेशन अच्छा रहा, काफी इंटरेक्टिव रहा सेशन आज का. आई वुड से कि पिछले जितने भी सेशंस हमारे हुए हैं इतने दिनों में, उसमें दिस वाज वन ऑफ द मोर इंटरेक्टिव वंस, जिसमें काफी अच्छा पार्टिसिपेशन, बहुत देख के अच्छा लगा मेरे को भी. सो with that, like I said कि इसको अपने रिजीम का हिस्सा बनाते रहें, टाइम टू टाइम चीजें अपने एक्सरसाइज के रूटीन में ऐड करते रहें. हम जब सेशन लेते हैं, हमारा एक पर्पस होता है कि पहले थोड़ा थ्योरेटिकल बताएं, उसके बारे में समझाएं कि हम क्या कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं, व्हाट इज द साइंस बिहाइंड इट. लेकिन एट द सेम टाइम साइंस को समझना जरूरी है, बहुत जरूरी है. एट द सेम टाइम इस बात का भी ध्यान रखना है कि हर एक्सरसाइज हर किसी के लिए एक जैसी नहीं होती है. someone might do it in some or the other way, कि उसमें थोड़ा सा डिफरेंस आ ही जाता है. सो अब जितने भी सेशंस हुए हैं, सब में से हम हर एक्सरसाइज को एक साथ करने बैठेंगे तो फिर तो उसमें बहुत देर लग जाएगी. वी वांट कि आप अपना on a personal level, on a like a one-to-one level, आपको कहाँ पे एक अपनी तरफ से physical कोई limitation लगता है किसी चीज पे. It could be muscle strength, it could be your balance, it could be कि someone has a history of knee pain, someone has history of back pain. तो हम चाहेंगे कि आप उस एक particular हिस्से पे या उस एक पर्टिकुलर टॉपिक पे जब हमारा सेशन होता है उस पे ज्यादा अपना फोकस कीजिए. लेकिन हाँ, एट द सेम टाइम बाकी एरियाज को एक्सक्लूड नहीं करना है बिल्कुल. उनके ऊपर भी थोड़ा थोड़ा वार्म अप करते रहना चाहिए, स्ट्रेचिंग करते रहना चाहिए, ताकि जो मेन एक पर्टिकुलर एलिमेंट है जो हमें तंग कर रहा है वो तो सॉल्व हो ही जाए. उसके अलावा भी ओवरऑल
जो हम चाहते हैं, जो हमारा पर्पस है कि घर में रहकर हम सबको फिट रखें एंड सबको सही से चलता फिरता रखें, वो पूरा पर्पस सॉल्व हो जाए फ्रॉम हेड टू टो, पूरा अच्छे से हो जाए वो। सो अपने रिजीम को अपने हिसाब से, अपने मतलब फिजिकल कैपेबिलिटीज के हिसाब से, इवन अपने आई वुड से अप टू सम एक्सटेंट अपने साइकोलॉजिकल कैपेबिलिटीज के हिसाब से अपने रिजीम को खुद प्लान करिए। एंड ये मतलब इसमें द ब्यूटी ऑफ इट इज कि आप अपना पूरा जो रूटीन है, पूरा अपना फिटनेस प्रोग्राम है, आप खुद अपने हिसाब से उसको डिजाइन कर सकते हैं अपनी इच्छा अनुसार, क्योंकि उसमें आपको खुद एक हमसे बेटर आइडिया रहेगा आपको उस टाइम पर कि इस पर्टिकुलर एक्टिविटी में मुझे कैसा फील हो रहा है। अगर अभी इस समय हम आपके घर पे होते, हमने पूरा असेसमेंट किया होता अच्छे से हैंड्स ऑन जैसे हम करते हैं फिजिकल थेरेपी में, एंड देन हमने उसका एक पूरा एक समरी बनाया होता अपने पास हर चीज का, तब एक अलग बात होती है। टू कोलेट दैट डेटा इनटू लाइक अ डेटाबेस एंड उसके थ्रू स्टडी करके बनाना इज वन थिंग, बट एट द सेम टाइम अपने घरों में रह के उस चीज को कर पाना खुद, मतलब विद मिनिमल अमाउंट ऑफ असिस्टेंस, उसका भी एक बहुत अच्छा आई वुड से, ये भी एक बहुत ही बड़ा, एक बहुत ही अच्छा एस्पेक्ट है ऑफ having a virtual session। ये सब अपने घर के अंदर, अपने घर की छत के नीचे रहकर सब कर पा रहे हैं in a very safe environment। So with that I'll conclude the session for today। आप ये सब करते रहिएगा अच्छे से, अपना एक रूटीन फॉलो करिए, रूटीन डिजाइन करिए अपना इस तरह से कि आप उसको अच्छे से फॉलो कर पाए, एंड बी सिंसियर टू इट, बी वेरी रिलीजियस टू इट, एंड अपना ध्यान रखिए, घर के अंदर रहिए जितना हो सके। अभी सिंस वी नो कि 3 मई तक तो घर में ही रहना है, उसके आगे जो होगा सो होगा, उसके बारे में वी कांट रियली प्रेडिक्ट मच। सो फॉर द टाइम बीइंग जो सबसे सेफ ऑप्शन है उसी के थ्रू चल के अपने आप को आगे बढ़ाए रखना ही ठीक रहता है। सो कीप डूइंग दैट एंड आई विल सी यू ऑल टुमारो एट 8 AM। सो तब तक आप सब अपना ध्यान रखिएगा एंड सब अच्छे से एकदम फिट रहिएगा, ठीक है? Thank you very much. Thank you so much for joining in. Thank you so much. Bye bye. Thank you. Okay. Bye bye. Take care. Bye. Thank you. Thank you, sir. Take care. See you Thank next you, week. Dr. Mehta. Thank you very much. Yeah, bye, sir. Bye. Bye. Bye, everybody. Take care.